हाय स्टूडेंट्स। आज हम आपको आगे बताएंगे। कल हम लोगों ने करा था इससे पहले एवरेज स्पीड के बारे में, फिर इंस्टैंटेनियस स्पीड के बारे में। आज हम आपको बताएंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो यू ट्राई टू स्टार्ट विथ एवरेज वेलोसिटी। Average velocity V average is equal to total displacement divided by total time taken. Okay. बट वन मोर फार्मूला, जैसे एवरेज स्पीड में हमने बताया था कि अगर आपको दो स्पीड दिया हुआ है जाने का एक आने का, तो फिर हम उस स्पीड का एवरेज नहीं निकालते हैं, क्योंकि वहाँ पे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन निकालना है। इसमें एक आप कर सकते हो कि अगर आप श्योर हो कि थ्रू आउट द होल मोशन, इंटायर मोशन, the acceleration is same there, acceleration is uniform, तो इसकी एक अलग फॉर्मूला आप कर सकते हो। if acceleration is uniform, then v average, इसको वेक्टर के रूप में लिखना, v average is equal to u plus v divided by 2. But this formula you use only when if you are sure that the object is moving with uniform acceleration. If you are not sure, then don't use this formula. तो ये इसके restriction है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ओके, ये हुआ एवरेज। नाउ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे वो देख लें। उसी तरह से इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी v, यहाँ पे inst लिख देते हैं जैसे, दिस इज यू कैन राइट हियर dx अपॉन dt। अगर ये x डायरेक्शन में, वन डायमेंशन की बात करें x डायरेक्शन में, तो dx बाई dt, और वैसे भी आप लिख सकते हो dy बाई dt, dz बाई dt, dr by dt, ds by dt. So anyway you can express this. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फिर आप देखें आगे। एग्जाम्पल ये है कि मान लो एक पॉइंट है A, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग in one dimensional motion along x axis, it is B, and mark is given, this is a 0, this is 50 meter, this is your 100 meter, this point is C, consider उल्टा हो गया, इसी को B मानो, ये पॉइंट C मानो। ओके, the object is traveling here like this from starting point O, it goes, and here is an object, ऑब्जेक्ट में कोई भी हो सकता है, somebody is going like this and he returns, come to the station B. तो अगर आप and time taken is given here some 30 second, तो 30 second में the object starts from point O, reaches to point C, and then comes back to point B. In this case, if somebody will ask you what is average speed and what is average velocity, तो एवरेज स्पीड करें, एवरेज स्पीड as the formula suggests you, total distance, so how much distance is being traveled here, 0 to 100 meter, then again plus 50, so it is 150 meter divided by 30 second. So average speed of this journey is equal to 5 meter
per second. In the same question, if somebody will ask you, what is average velocity? The average velocity, naturally you have to take here displacement. The V average, this is vector, so average velocity is equal. What is displacement? The initial position is O, final position is B. Join this line here. The displacement is 50 meter. Displacement is 50 meters. So you can write here 50 meter divided by 30 second. Zero cancel. So average velocity is what? 5 meter per second. What is the direction? Direction के लिए हम n cap कुछ ऐसा, a cap, b cap, जो भी cap डालना है डालिए. तो cap मतलब हुआ unit vector. Unit vector is used to show the direction. So the magnitude of speed you are finding, average speed is 5 meter per second. But the magnitude of average velocity is here 5 by 3. 5 by 3 meter. It is not 5, it is 5 by 3. 5 by 3 meter per second having particular direction. Okay. ये तो हुआ एवरेज वेलोसिटी के बारे में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में. Now you come briefly we are doing because these all things you might have done earlier. इसलिए फटाफट हम लोग करते जा रहे हैं. ओके. तो सबसे पहले आगे देखते हैं, एक और टर्म आता है एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन दैट एवरीबडी नोस. ये तो शुरू से ही फॉर्मूला आप पढ़े हो. ए इज इक्वल टू v minus u upon t. This is your average acceleration. The final velocity minus initial velocity divided by time. Instantaneous acceleration. This you write on vector. Okay. Instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration A is equal to, ये A एवरेज कर देंगे. ठीक है. कि क्या होगा? नेचुरली इन वेक्टर फॉर्म dv by dt. ओके. तो ये याद रखिएगा, जो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन के बराबर होता है. तो एज फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, तो आप सुनिए. द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, राइट डाउन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन is along the direction of change in velocity Okay. अब इस पर एक दो बातें आप ध्यान से समझें और सीखें कि चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे. तो एक छोटा सा एग्जांपल आप लें. Let this is your velocity u and suddenly velocity changes v. Okay, suddenly velocity changes v. तो v जब वेलोसिटी चेंज हुआ, इसका मतलब है कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा. व्हाट इज द फोर्स एक्चुअली? व्हाट इज द फोर्स एक्चुअली? यू लुक, सॉरी, बिना फोर्स के वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता है. ये बिल्कुल ध्यान रखना. सिंस वेलोसिटी चेंज है तो देयर मस्ट बी ए फोर्स, और फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा. अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, अब अभी हम बोले एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होता है वह चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन के बराबर होता है. अब देखें, तो इसको हम अलग से देखें. ये आपको v का डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टली u का डायरेक्शन. तो
इधर जो होगा, सॉरी, इसके ठीक अपोजिट ये जो होगा, सी इट इज अ वेक्टर, करेक्ट, ये होगा आपको माइनस यू का डायरेक्शन, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, डेल्टा वी का मतलब हुआ वी माइनस यू। तो किधर लगा होगा फोर्स, तो नेचुरली ये का रिजल्टेंट क्या होगा, आप सब्ट्रैक्शन में पढ़े हो, तो इसी के बीच में होगा। दिस विल बी डायरेक्शन, एग्जैक्ट बीच हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड सेम होगा तो एग्जैक्ट मिडिल होगा, नहीं होगा तो अकॉर्डिंगली वो एंगल आप निकाल सकते हो, टेन फाइव या टेन अल्फा का जो हम लोग वैल्यू निकालते थे उस हिसाब से, याद होगा बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो चूंकि ये माइनस है तो इसमें ए प्लस बी कॉस थीटा नहीं होगा बल्कि ए माइनस बी कॉस थीटा होगा। सो प्लीज यू अंडरस्टैंड। तो चेंज इन वेलोसिटी देखो, ये u है, इस डायरेक्शन में माइनस u होगा ना, तो हमको v माइनस यू का डायरेक्शन देखना है, तो ये डायरेक्शन हुआ तुमको v माइनस यू का, या ये डायरेक्शन हो गया एक्सेलरेशन का, या ये डायरेक्शन हो गया फोर्स का, तो v माइनस यू का भी सेम, मतलब तीनों का डायरेक्शन वही है। नेचुरली जिधर एक्सेलरेशन होता है डायरेक्शन उधर ही तो फोर्स का डायरेक्शन होता है, v माइनस यू का भी वही डायरेक्शन होता है। तो आई होप दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड। तो जब जब हमको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पूछे तो हम क्या निकालेंगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन है। ओके, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, इसको आप समझें और फिर हम आगे बढ़ें। अब देखिए इससे मिलता जुलता क्वेश्चन क्या है। मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है, ये इसका सेंटर, एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन दिस ट्रैक सर्कुलर, ठीक है। तो सर्कुलर ट्रैक दो तरह का हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, एक है हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन, एक होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जैसे आप सर्कस में देखे होंगे मौत का कुआं होता है, ऊपर ऊपर करता है, तो दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और एक होता है क्या, हम दौड़ करके 100 मीटर 200 मीटर का ट्रैक पे दौड़ रहे हैं राउंड राउंड, तो ये हुआ हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन। सो आई एम टॉकिंग अबाउट हॉरिजेंटल ओनली, कोई भी मान सकते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। से the speed of an object is 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये क्वेश्चन आप करना और मुझे इन्फॉर्म करना कि what did you get if you apply the vector, क्योंकि वेक्टर आपने पढ़ लिया है, तो वेक्टर को यूज करके आप बहुत आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली ऑन दिस सर्कुलर ट्रैक। हम एक पोजीशन लेते हैं यहां से एकदम 90 डिग्री का, ये 90, यहां ये पोजीशन बी। When this object goes from A to B, ठीक है, और फिर बी टू सी में ए टू सी एक और पॉइंट है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, सी इज डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। ओके, तो आपको दो पार्ट में क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि इफ ऑब्जेक्ट इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ओके ओके, ऑब्जेक्ट इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, what is change of speed delta v, and what is change of velocity delta v? This is question, this is question. फिर वही तरह से if the object goes from A to C, what is change of speed delta v, and what is change of velocity? I hope that you might have understand. ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप हमें बना के इन्फॉर्म करना कि कैसे हम लोग निकाल लेंगे। बट माई रिक्वेस्ट इज यू यूज इन वेक्टर वे, देन यू कैन अंडरस्टैंड केयरफुली, अदरवाइज डिफिकल्ट वन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करें और हमें इन्फॉर्म करें। चलो आगे हम आपको जो बताने जा रहे हैं इसको ध्यान से देखें, वो है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके, इसका ग्राफिकल मेथड आप पहले पढ़ चुके हो क्लास 9th में ही। हम ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर लेते हैं।
हम आपको कैलकुलस मेथड ही बताएंगे बिकॉज इट इज इजी। और कैलकुलस मेथड आपके क्लास 11 में है। कैलकुलस मेथड तो कैसे करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन वो आप देखें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला, तो कितना आसान है वो आपको समझ में आएगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ध्यान से देखें। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू dv बाय dt। ओके, ए इज इक्वल टू dv बाय dt। बस यहां से शुरू करेंगे तो आपका कितना, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो dv इज इक्वल टू हो जाएगा a dt। नो प्रॉब्लम। हमको इक्वेशन निकालना है v का, तो आपको दिया हुआ है dv, तो dv से v लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट। तो जाहिर है आप याद करो dx का इंटीग्रेट करते थे तो x आता था, तो हम इंटीग्रेट करेंगे एंड फिर हम लिमिट भी लेंगे इसमें। यू राइट, integrating the above equation and taking proper limits, integrating the above equation and taking proper limits कैसे फिर निकाल लेंगे देख लो। तो लिमिट की बात करें पहले, तो मान लो सबसे पहले देखो यहाँ वेरिएबल है t, dt है ना, और यहाँ वेरिएबल है v, तो हमको दोनों का लिमिट लेना है। तो पहले टाइम का, तो टाइम का इनिशियल लिमिट लेते हैं 0 और फाइनल लिमिट या लोअर लिमिट लेते हैं 0 और अपर लिमिट लेते हैं t। यानी टाइम का जो वेरिएशन है वह 0 से t है। उसी तरह से वेलोसिटी का जो है वो हम इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं, या तो u, जो पहले से आप करते तो u ही करो, कहीं कहीं v0 लिख देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हुआ तुम्हारा लोअर लिमिट और ये हुआ अपर लिमिट। तो जब 0 टाइम था तो वेलोसिटी का, इसे टाइम हम लिख दे वर्ड में तो ज्यादा हो जाए, टाइम एंड वेलोसिटी। ओके, तो जब 0 टाइम था तो उस समय का वेलोसिटी हम मान लेते हैं u, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, और जब टाइम t है तो उस समय हम वेलोसिटी मान लेते हैं v। ये हमारी लिमिट हो। तो आप लिखें इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, क्या मिलेगा आपको, कुछ प्रॉपर लिमिट्स, वो तो आप लिख ही दिए हो। तो हम आप इंटीग्रेट करें dv को और यहाँ पे a dt को इंटीग्रेट करो। ओके, अब देखो लिमिट, वेलोसिटी का क्या लिमिट था, u2v, ठीक है, माइनस जैसा नहीं लगे, तो इन लोअर लिमिट है u और अपर लिमिट है v, करेक्ट। और यहाँ पे टाइम का लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है t। आप t1 ले सकते हो, t2 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सो एनीथिंग यू कैन टेक, बट डिपेंड्स ऑन लिमिट। तो वो जो फॉर्मूला आप पढ़े हो वो प्रूव नहीं हो पाएगा अगर आप दूसरा लिमिट लेने लगे। अब आप इंटीग्रेट करें तो dv का इंटीग्रेशन होता है v। तो जब आप इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन का सिंबल हटा दें, लेकिन लिमिट का काम हम अभी नहीं किए हैं, इसलिए लिमिट हम रखेंगे। सो दिस इज इक्वल टू, अब इधर देखें, हम a को कांस्टेंट मानते हैं क्योंकि ये जितने भी इक्वेशन आप पढ़े हो 9th में, उसमें एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान के ही इक्वेशन बनाएंगे। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो आप ये इक्वेशन सब मीनिंगलेस है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए हम कांस्टेंट टर्म को बाहर किए, बचा dt, dt का इंटीग्रेशन होगा t कर दिए और लिमिट हम रखे 0 से t।
ये हुआ इंटीग्रेशन का आधा काम। अब हम लिमिट इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करने का नियम है कि इसके जगह हम अपर लिमिट रखेंगे माइनस फिर इसी के जगह लोअर लिमिट रखेंगे। तो अब हम लिमिट का काम करें तो इसके जगह हम क्या लिखें, अपर लिमिट v माइनस इसी के जगह हम लिख देंगे u। तो v माइनस यू इज इक्वल टू a। अब t का अपर लिमिट t के जगह हम t लिखेंगे। अगर हम t2 रखे रहते तो यहाँ t2 लिखते, t5 लिखे रहते लिमिट में तो t5 यहाँ ले लेते। तो क्या होगा, t माइनस लोअर लिमिट है 0। ओके, सो पहला बार कर रहे होगे तो हो सकता है थोड़ा लगे कि यह है कुछ नहीं। अब आपका इक्वेशन फाइनल हो गया। तो फाइनल आप देखें क्या हुआ। यस, टेल मी। So finally you got what? V minus u is equal to at, या V is equal to u plus at. This is your first equation of motion that you know. तो कैलकुलस मेथड से हम स्टार्ट किए एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से। ओके, चलो एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, ध्यान दें। फिर से अब दूसरा में यूज करेंगे। दूसरा इक्वेशन कैसे, वो आप देख लें। दूसरा इक्वेशन, ये दूसरा नंबर नहीं है, एक्चुअली है तीसरा, लेकिन हम लोग प्रूव करें नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में फिर से आप स्टार्ट करो, लेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, फिर से एक्सेलरेशन। अब ये कौन सा फॉर्मूला आएगा वो देख लें। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। बहुत बढ़िया, डी वी बाई डी टी। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा रीअरेंज करें, डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, क्योंकि डी एक्स कैंसिल हो जाएगा। फिर हम इसको रीअरेंज करें, डी एक्स बाई डी टी को हम क्या बोलते हैं, डी एक्स बाई डी टी इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इंटू वी। ओके, तो कुल मिला के क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा, उसको हम इस साइड लिख देते हैं। तो हमारा मिला वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एक्स। आई होप दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड। वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एक्स। अब चूंकि हमको v का एक्सप्रेशन निकालना है, तो आप ध्यान दें कि इसको हम क्या करेंगे, फिर से इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि dv है तो dv से भी हो जाएगा इंटीग्रेट करने से। फिर आप वही लाइन लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन एंड टेकिंग प्रॉपर लिमिट्स। तो इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन and taking proper limits, proper limits क्या आएगा, तो आप इंटीग्रेट करो तो लिमिट क्या रखोगे। देखो यहाँ वेरिएशन है dv, ध्यान से देखना, यहाँ वेरिएशन क्या है dv और यहाँ वेरिएशन क्या है x। तो वेरिएबल v है यहाँ पे x है, तो लिमिट होगा उसका। तो लेट अगर आपका x का अगर हम लें, x को हम मान लेते हैं 0 से x, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका लिमिट क्या हो जाएगा, देख लें, v का लिमिट हो जाएगा u से v। शुरू का वेलोसिटी u, बाद का वेलोसिटी v, यानी अपर लिमिट v है और x का अपर लिमिट x ही है, लोअर लिमिट 0 है। तो ऐसे करके अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। आप x1 x2 भी ले सकते हो, ठीक है, वहां पे v1 v2 भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वही बात है, अगर हम वो लेंगे तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ मतलब जो फॉर्मूला आप पढ़े हो वो फॉर्मूला नहीं मिलेगा। नाउ यू डू देयर। तो हम इसको
इंटीग्रेट करें और लिमिट लें u से भी, इसको भी इंटीग्रेट करें, लिमिट लें 0 से x। ठीक है, तो अब आप इसका इंटीग्रेशन हम बताएं क्या होता है। वी डी वी का x डी एक्स का इंटीग्रेशन याद करें, x डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो वी डी वी का क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2। इसको हम लिमिट का काम अभी नहीं किए हैं, तो लिमिट अभी रखेंगे u टू v। देन व्हाट यू विल डू, आपका एक कांस्टेंट है, हम पहले ही बोल चुके हैं कि इस जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़े हो उसमें एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखा गया। तो बताएं आगे, तो a बाहर हो जाएगा, dx का तो हो जाएगा x, ये आप देख लें। और लिमिट क्या लिए, 0 टू x। अब लिमिट का काम करो, तो ध्यान से देखो, पहले हम b के जगह लिखेंगे अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 माइनस, फिर b के जगह हम लिखेंगे लोअर लिमिट, ये हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू a, इसके जगह हम लिखेंगे अपर लिमिट इज x माइनस, इसी के जगह हम लिखेंगे लोअर लिमिट। ओके, so finally what you got, v square minus u square by 2 is equal to a into x। तो क्या फॉर्मूला बना वो आप ध्यान से देखें, तो फॉर्मूला आपका बन गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। ये तीसरा नंबर का इक्वेशन था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, एक और बच गया, एस नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग डिस्प्लेसमेंट एक्स ले रहे हैं। ओके, नाउ यू कम हियर, नेक्स्ट इज ओके, तो नेक्स्ट इज व्हाट, कि इसको अगला ये इक्वेशन हम प्रूव करेंगे, एक आपके लिए छोड़ देंगे ताकि आप कोशिश करो करने का। तो अगला इक्वेशन है जो पढ़े थे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर, इस तरह का। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वन डायमेंशनल के कारण हम एक्स ले रहे हैं, वाई भी ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं, तो लाइक दैट यू कैन कैरी ऑन। अब चलें, सिंपली यू राइट ऑन, स्टार्ट विथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब की बार वेलोसिटी लेके चल रहे हैं, दोनों में एक्सेलरेशन लेके चल रहे थे, की बार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v is equal to dx by dt। बहुत बढ़िया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, dx is equal to v into dt, ये भी बहुत बढ़िया है। नाउ यू कम हियर, अब देखें हमको x का फॉर्मूला यानी s का नहीं x का फॉर्मूला निकालना है, तो dx को हम इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन हम ये करें कि देखो क्या इसमें टाइम छुपा हुआ, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि dx कैन बी रिटन एज, v के जगह हम लिखेंगे u प्लस at, जो अभी इक्वेशन 1 में प्रूव किए थे, इनटू dt। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि v में t छुपा हुआ था, तो v जो है वो कांस्टेंट ना होकर के ये वेरिएबल है। देखने में लग रहा है कि इसको t से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब आप इसका अंदर का ऑपरेशन करोगे तो आपको पता चलेगा। देखो इसको हम बाहर करके नहीं इंटीग्रेट कर सकते, क्यों, क्योंकि v इज डिपेंडिंग ऑन टाइम। और एक्सेलरेशन को बाहर कर लेते थे, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन जो था वो टाइम फाइम पे डिपेंड नहीं करता था, कांस्टेंट हम मान के चलते। ठीक है, तो इसलिए हमने v को आपको u प्लस ए टी रिप्लेस किया। अब चलें इसको थोड़ा और बढ़िया से लिखें, थोड़ा रीअरेंज करके, dx इज इक्वल टू, अब स्प्लिट करके लिख दो, u dt प्लस ए टी डी टी, ध्यान से देखें। ओके, इसको हम अरेंज कर दो। अब हम क्या करेंगे, बस हो गया, हमको x का फॉर्मूला निकालना है, आपको dx का फॉर्मूला बना, तो नेचुरली x निकालने के लिए आपको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन
इंटीग्रेट करो, बट टेकिंग प्रॉपर लिमिट्स ऑल्सो, टेकिंग प्रॉपर लिमिट्स। इसमें हम थोड़ा आपको और ये करेंगे, मान लो टाइम जो है 0, ठीक, टाइम इज 0, तो उस समय उसका पोजीशन जो है, यानी पोजीशन जो है वह है x0, और जब टाइम का वैल्यू t हुआ तो उसका पोजीशन हो गया x। ये ध्यान में रखिएगा, टाइम 0 से t हुआ, पोजीशन x0 से x हुआ। 0 से x भी लिख सकते हैं, अगर आप श्योर हो कि वो ओरिजिन से ही चला है तब हम x0 को 0 मान के चल सकते हैं, लेकिन हम अभी नहीं मानेंगे। इस तरह सवाल बहुत आएगा, इसलिए हम मान लिए कि शुरू के टाइम में ही जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन से नहीं शुरू हुआ है, x0 की कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यू है, करेक्ट। तो आप ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ सवाल आपको आएगा जो आपको बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करें, आप इसको आप इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेट करके लिमिट लिए x0 टू x, इसका लिमिट लिए 0 टू t, और इसका लिमिट लिए फिर 0 टू t, क्योंकि यहाँ में भी टाइम वेरिएबल, यहाँ पे भी टाइम वेरिएबल, यहाँ पे x वेरिएबल। dx का इंटीग्रेशन होता है, कुछ बहुत बड़ा नहीं है, लिमिट है x0 से x। u आपको यहाँ पे कांस्टेंट लेके बाहर करना पड़ेगा, u बाहर है, dt का इंटीग्रेशन होगा t, ये हो जाएगा 0 से t, प्लस a बाहर होगा, t dt का इंटीग्रेशन होता है t²/2, लिमिट होगा 0 से t। अब आप लिमिट का काम करें तो x माइनस x0, ठीक है, बराबर हो जाएगा, बराबर क्या होगा बताएं, u, अभी हम लिमिट ही डालें, u t के जगह अपर लिमिट लिखेंगे t, माइनस t के जगह लोअर लिमिट रखेंगे 0, प्लस ये 2 को बाहर कर लेते हैं, a/2, t² के जगह हम लिखेंगे t² माइनस 0² तो 0² तो 0 ही होगा, हम इसलिए बाद में लिखेंगे भी नहीं, उसे शुरू में लिख देते हैं। व्हाट इज दैट? तो फाइनली आपको मिला क्या, फाइनली मिला x माइनस x0 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ओके। और x माइनस x0 को ही हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। x माइनस x0 को ही हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ओके ओके, नो प्रॉब्लम ये। तो अब आप देखें, इसको हम करते क्या है बढ़िया से। अगर मान लो हमको पोजीशन निकालना हो तो ध्यान दें कि भाई टी टाइम के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी, तो पोजीशन के लिए हम लिख सकते हैं पोजीशन x इज इक्वल टू x0 प्लस ut प्लस हाफ ut²। ये दिस इज फॉर पोजीशन कि भाई टी टाइम के बाद पोजीशन क्या, x0 क्या है, इनिशियल पोजीशन। तो मोस्टली आप 9th के लेवल में x0 का वैल्यू 0 ही लेता है, क्योंकि ये मान के चलता है कि वो ओरिजिन से ही शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। एक और इक्वेशन है जो आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं कि मान लो कि डिस्प्लेस x0 जो है वह 0 है, तो x0 अगर 0 हो जाए तो जो पोजीशन आएगा t टाइम के बाद वही डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 0 है, ओके। तो आप नॉर्मली ये इक्वेशन बहुत जानते हैं, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ut²। But mind you, it is conditional that you have already assumed that the object has started from origin, but not necessary you will get the same case. कभी कभी आपको धोखा होगा, तो ये ध्यान करें और इसको बढ़िया से देखें। आगे देखें इसको करते क्या है। तो आपको क्या करना है कि मान लो कि हमको कोई पूछ दे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड,
तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड अगर आपसे कोई पूछ दे तो फिर आप क्या करोगे? तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड के बारे में आप जाने। हाँ, उसको हम कैसे निकालेंगे nवें सेकेंड में? तो पहले हम क्या करते हैं, जैसे मान लो छठे सेकेंड का हमको डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे ना, 6 सेकेंड का निकाल लेंगे और फिर 5 सेकेंड का भी दूरी निकालेंगे। 6 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट में 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर लेंगे तो हमारा छठा का मिल जाएगा। तो वही मतलब लगाते हैं। अगर आप थोड़ा लॉन्ग कट मेथड है, शॉर्टकट नहीं है, तो आप क्या करें, पहले आप t इज इक्वल टू एन ले लें। तो एक्स एन बराबर होगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और t इज इक्वल टू एन माइनस 1 सेकेंड ले लें, एन सेकेंड। तो फिर एक्स एन माइनस 1 जो होगा वो क्या होगा, इसी फॉर्मूला पे डालो, u इंटू एन माइनस 1 प्लस हाफ इंटू ए इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हमको एक्स एनथ निकालना है। तो एक्स एनथ यानी एनवें सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1। तो प्लीज यू कैलकुलेट एंड यू गेट द रेलिवेंट फॉर्मूला। एक तरीका तो ये है, और अगर आप और इंटरेस्ट है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, तो देयर इज अ कैलकुलस मेथड ऑल्सो टू फाइंड द सेम फॉर्मूला। तो आप उसको कोशिश जरूर करें। अब देखिए, मैं आपको 2 सवाल देता हूं कि इसको आप सॉल्व करके देखेंगे, यानी तो एक सवाल सिर्फ देते हैं, इस सवाल को सॉल्व करके आंसर हमें बताना। एक बैलून है, ठीक है, ये है 100 मीटर हाइट पे, ध्यान से देखें। The balloon is lying at 100 meter height and balloon is going up with 10 meter per second speed. The balloon is moving up with constant velocity, speed नहीं बोल, constant velocity 10 meter per second, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। When it reaches to 100 meter, then a stone is dropped. When it reaches to 100 meter, then a stone is dropped. Stone is dropped. ओके, आपको निकालना है इसमें 2 चीज। कितने टाइम के बाद, हाउ मच टाइम आफ्टर द स्टोन विल हिट द ग्राउंड, ठीक है, टाइम निकालना है। जब वो स्टोन ग्राउंड को हिट करेगा तो बैलून कहां होगा, कितने हाइट पर होगा। तो प्लीज यू थिंक एंड यू ट्राई टू। क्वेश्चन अगर हम एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, ए बैलून इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन। When it reaches to 100 meter height, a stone is dropped from the balloon. Correct? Stone is dropped from the balloon. The question is, after how much time the stone will hit the ground? ठीक। दूसरा है कि when the stone hit the ground, at the same time, where will be the balloon? दोनों बात निकालने हैं, ठीक है। तो आई होप दैट द क्वेश्चन यू माइट हैव अंडरस्टूड एंड ट्राई टू सॉल्व दिस वन। कल हम आपको इस चैप्टर में ग्राफ के बारे में आपको बताएंगे, और ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो हम लोग सीखेंगे, देखेंगे कि कैसे हम लोग ग्राफ यूज करते हैं। पहला चैप्टर में तो ग्राफ ही बहुत ज़्यादा है, तो ग्राफ को अच्छा से समझना है। पूरे 11-12 में आपको वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ग्राफ, ये सब जगह आपको मिलेगा। तो इसको आप भूलिएगा कभी नहीं अगले 2 साल के लिए, ठीक है। देखेंगे बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।